Literature Festival. I'd like to thank all of you for coming here today. And let's buckle up our seats and go to the mission again. Leadership in Serif, Netaji Azad Hind Sarkar and the military's perspective. Buckle up as we navigate the crucial chapter in the Indian history with our accomplished panel. Thank you so much for coming here today. Your coming here today means a lot for us. Thank you for gracing us. Now I would like to make you all meet our panelists. I would like to start with RSN Singh Ji, an alumnus of the National Defence Academy and the Rashtriya Indian Military College. Served in the Indian Army and the Research Analytics Wing. His expertise in military strategy, geopolitics and internal security. He is also an author of internationally acclaimed books such as Asian Strategy and Military Perspective and known the Anti-National. Thank you so much, sir, for coming here today. It means a lot. I would request you to please come up on the stage, and ladies and gentlemen, please bring your hands up. Now last but not the least, our last panelist is Mr. Kapil Kumar Ji. He is the author of 10 books and over 35 research papers. He is also known as an historian, chief professor at IGNOU, a visiting professor to many universities worldwide, and chief historian to several museums. Currently he is working on another book on Netaji Azad Hind Fort. What a pleasure to have you here, sir. Please put your hands together. Now I would like to thank both of you for coming here today and gracing our stage. I would request you to please start the conversation by him. Hello. Thank you very much for providing this opportunity. And all I can say is I'll try my best not to bore you, both I and Singh. I being a historian and Singh being an expert in defense areas, I do feel also. Singh, he being a specialized military and security expert, I do feel sometimes nervous before. But if I start with this, that after 1947 we have seen a period in Indian history where history was distorted, history was suppressed, and all the facts which we have brought out now, they already existed there every time. But our historians had no time to glance through those records, look at those files. And on the contrary, the narrative that was built, कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत न करते हैं. A narrative which humiliates and insults all our revolutionaries who gave their lives struggling for the freedom of India, for the freedom of Bangladesh. It insults the Azad Hind Fauj. It insults the ratings of Navy which revolted. But the narrative was built because it suited the political interests. Please tell me a single history book which says that after Second World War, the only government which did not surrender to the allied, victorious allied forces was Azad Hind Sarkar. सारी दुनिया ने अपने सरेंडर कर दिए थे. आज़ाद हिंद सरकार ने सरेंडर नहीं किया था. 11 कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था. अकेली आर्मी जिसने सरेंडर नहीं किया एलाइड पावर्स के आगे, आज़ाद हिंद फौज.
और इससे पहले मैं सिंह साहब को अगला डायलॉग के लिए बोलूं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि युद्धों के इतिहास में सिंगापुर के अंदर 1941 के अंदर जो 80,000 ब्रिटिश के सोल्जर्स का सरेंडर था जापानियों के आगे, उतना बड़ा सरेंडर दुनिया में तब तक कभी नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है, नियाजी का, जो 93,000 फोर्सेस के साथ नियाजी सरेंडर है। और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेटिंग एस्पेक्ट था ब्रिटिश फोर्सेस के। और दूसरा ह्यूमिलेशन हुआ जब उन 83,000 में से लगभग 40,000 वो अंग्रेजी सेना को छोड़ करके आजाद हिंद सेना में शामिल हुए और देश की आजादी की, जिस खबर को अंग्रेजों ने लगातार छुपाया, उनकी प्रोपेगेंडा मशीन ने छुपाया, और जिस तरीके से उन्होंने छुपाया उसी तरीके से हमारे नेताओं ने छुपाया। किसी किताब के अंदर आप ये नहीं देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस महीनों जा करके बॉर्डर के ऊपर सैनिकों के साथ रहे, उन्हीं की तरह पिट्ठू पहन के उन्हीं के साथ उन ट्रेंचेस के अंदर रहे, वही खाया वही पिया, उनको लीड किया फोर फ्रंट से। किसी किताब में और एक लीडर कोई मुझे दुनिया में ऐसा दिखा दीजिए जो 3-3 महीने सबमरीन में रहा नेवी की, जिसने इस तरीके से लीड किया बॉर्डर में जाकर। और इस तरीके से लीड ही नहीं, माउंट पोपा के ऊपर जब जनरल शाहनवाज कह रहे हैं उनसे कि आप आगे मत जाइए, 5 किलोमीटर आगे ब्रिटिश फौज है, लड़ाई हो रही है, और वो जवाब देते हैं कि अंग्रेजों ने अभी कोई ऐसी बुलेट नहीं बनाई है जो मुझे लग सके। ये तो लाठी खाते हुए भी डरते थे। मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है। एक दिन एक टीवी डिबेट में मैं था, तो एक प्रवक्ता थे पॉलिटिकल पार्टी के, नेहरू जी 13 बार जेल गए थे। कहाँ बिल्कुल गए थे, लेकिन जो मैं आपसे अब पूछूंगा वो आपको नहीं मालूम हो। नहीं, ऐसी क्या चीज है जो हमें नेहरू के बारे में नहीं मालूम? मगर मुझे बताइए 13 जेलों में से एक जेल बता दीजिए जिसमें नेहरू जी ने चक्की चलाई, कोलू चलाया हो, जिसमें उन्हें उल्टा लटकाया गया हो, जिसमें उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया हो, जिनमें उनको बर्फ की सिल्ली में लिटाया गया हो। एक जेल बता दीजिए इन 13 जेलों में से। और आप कंपेयर करते हैं सावरकर के साथ। नहीं, वो माफीनामा, मैं कह जरा वो नाभा जेल का उठा के देख लीजिए जो मोतीलाल नेहरू ने भेजा था लिंडित को। और अगर अंग्रेजों की चाकरी की आप बात करते हैं तो नेहरू ने जब इंटर मिनिस्ट्री के अंदर शपथ ली थी तो किंग को मान के क्यों शपथ ली थी? हिंदुस्तानियों का बेवकूफ बना के 15 अगस्त को जो है फैलाया गया कि आजादी मिल गई हमें। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई इतिहासकार और कोई पॉलिटिशियन आगे बैठ जाए और जो कहते हैं इस बात को कि आजादी मिली थी। We only got a dominion status. The British king abdicated the throne of India on 22nd June 1948. Mountbatten took the oath of Governor General of India in the name of king. और स्वदेशी करने वाले इन महात्मा जी को जो सबको स्वदेशी का पाठ देते थे, जब भारत का गवर्नर जनरल बनाने की बात आई तो इन्हें अंग्रेज मिला, और प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई तो वो व्यक्ति मिला जिसने खुद कन्फेस किया था गैलेबर्ट को, यूएस एम्बेसडर को, कि perhaps I am the last British to rule over India. But leave aside, we'll come back to the military aspects and all. So Singh Sahab,
आप लोगों सभी को मेरा नमस्कार। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये तो चीज़ें हमेशा मौजूद थीं जो तथ्य बता रहे थे, आखिर इन तथ्यों से आप लोगों को हमको दूर क्यों रखा गया। तो ये तो इतिहासकार है, लेकिन एक इतिहास को बिना गहराई से जाने एक अच्छा मिलिट्री एनालिस्ट भी नहीं हो सकता है, डिफेंस एनालिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो मेरा अपना मेरा विश्लेषण है क्यों दबाया गया इन तथ्यों को। इसका कारण है कि अगर आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को आप देख लें, अगर 1901 से और 1947 तक आप देख लें, तो इसके 3 फेजेस हैं। एक फेज़ जो था तकरीबन आप समझिए कि 1901 से 1920 तक का फेज़ था, पहला फेज़। इस फेज़ में क्रांतिकारी लोग थे जो इट इज़ सैड टू से और इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट वाज अ वायलेंट रूट, दैट वाज अ रिवोल्यूशनरी रूट, जो कि बिल्कुल जायज़ रूट था। और उसमें बड़े बड़े विद्वान तो उसमें शामिल थे, जैसे कि औरबिंदो, आपको मालूम है, एक बहुत बड़े विद्वान थे। उसमें बागा जतिन जैसे लोग थे, सरकार जैसे लोग थे, वो खुदीराम बोस वाला वो फेज़ था। तो ये सब सारा 1920 तक चला और अंग्रेज इससे परेशान हो गए थे। बाकी इतिहास का ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरीके, और गदर पार्टी किस तरीके से यहाँ हथियार लाने की कोशिश की गई। और जो है पहली फेज़ में जब ये हो रहा था, ये बड़े विद्वान क्रांतिकारी लोगों का जिनमें हमने नाम लिया, जो कि स्वामी विवेकानंद से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उस समय हमारे गांधी जी ब्रिटिश के लिए वो रिक्रूटमेंट करवा रहे थे, गुजरात में घूम घूम के वो रिक्रूटमेंट करवा रहे थे। वहाँ पर तो उन्होंने हिंसा और अहिंसा का कोई फ़र्क नहीं समझा। और उसके बाद ये सेकेंड फेज़ आता है 1920 के बाद, जब गांधी का उदय होता है। और 1920 से लेके 1942 में सेकेंड फेज़ की बात कर रहा हूँ, ये जितने ज़्यादातर जो चंडाल प्रवृत्ति के लोग थे, मैं सभी का मैं उस दर्जे में नहीं डालता हूँ, लेकिन उसमें जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का, उसमें बहुत चंडाल प्रवृत्ति के लोग थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के कहने पे एक ये जो गरम जल, जिसको आप कहते हैं गरम दल रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनको दबा दिया गया। इसीलिए जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो गांधी जी को उनका दिल नहीं दहला, वो कभी आगे नहीं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर गांधी ने अपना अगर वो वर्चस्व अगर वो इस्तेमाल करते तो वो फांसी नहीं होती। लेकिन वो अंदर अंदर बहुत खुश थे कि भगत सिंह को फांसी मिल गई। तो ये जितने ये जो 22 साल का जो पीरियड है, इसमें इन्होंने सरकार भी बनाई 1937 के इलेक्शन में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इन्होंने, और उसके बाद 42 के बाद एक फेज़ आया जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला फेज़ था। 42 साल की उम्र में 8 अगस्त 1942 अंग्रेजों से मिलकर they conspired with the British and got themselves arrested en masse। आप कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने जा रहे हैं या इवन अंडरग्राउंड मूवमेंट, क्या आप एक ही जगह एकत्रित हो जाते हैं कि आओ हमको अरेस्ट कर लो? तो 1942 में आपको मालूम है क्विट इंडिया मूवमेंट विजिट। अब 1942 से जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ, ये सारे नालायक जेल में थे। और वो वाली जेल में वो जहाँ ब्रेड ऑमलेट, मतलब मेड टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट, इनको वो समय भी मिलता था किताब लिखने का, इस तरह के जेल में ये सभी थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको मालूम है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, वो क्या फ्रंट लाइन पे वो क्या कर रहे थे। और इनके जो इन्होंने कहा ये खड़क या डाल के 60,000 में से 26,000 लोग मारे गए। तो फिर आज़ादी किसने दिलाई?
जब 42 से लेके जो क्रिटिकल पीरियड था, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो अंग्रेज आपको कैसे आज़ादी चले गए? और इसलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी के कंट्रीब्यूशन को इन्होंने इतिहास के पन्नों से उसको मिटाना चाहा, लेकिन सच कभी मिटता नहीं है। आज उसी सच के तहत हम और प्रोफेसर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये मैंने इनकी एक किताब की वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है, उसमें इन्होंने एक ऐसा कोटेशन एक जगह लिखा है कि गांधी जी को देखिए, गांधी जी को आप कुछ भी कह दीजिए, वॉट एवर ही मे बी, बट ही वॉज नॉट ए फूल, ही वॉज ए वेरी चतुर मैन, वेरी क्लेवर मैन। और वो 1946 में जब आनंद मोहन सहाय से मिलते हैं, has emerged, and if we have to stay in India, we will have to reconquer India, and for that I will need 1 lakh European soldiers. क्या स्थिति हो गई? और उसके बेस पे 31 दिसंबर 1945 के दिन वेवल किंग को लिखता है कि we must compromise and reach an agreement, else there will be a movement much more stronger than 1942, which we will not be able to control. अंग्रेजों के सामने 45 में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। वो ये भी अप्रीहेंड कर रहे थे कि इलेक्शंस के बाद में 46 हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो, क्योंकि सारी रिपोर्ट उस समय का पीरियड देखिए, पुलिस स्ट्राइक है उस समय 4 स्टेट्स के अंदर, गवर्नमेंट सर्वेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, जो आर्मी के अंदर टेक्निकल सिविलियन यूनिट्स है वो स्ट्राइक कर रही है, कई स्वीपर्स की स्ट्राइक हो रही है। मतलब कोई सेक्शन इंडियन सोसाइटी का उस समय ऐसा नहीं था जो सड़क के ऊपर नहीं। नेहरू खुद कह रहा है कि मैं हैरान हूं कि मूवमेंट कैसे खड़ा हो, और जो रोल है उस समय प्रेस का, मैं सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के एडिटर्स को उस समय की, या अंग्रेजों की हुकूमत भाई गई नहीं थी 15 अगस्त तक, लेकिन उस समय पे बोस की फोटो छापना, बोस की सारी स्पीचेस छापना जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, एक बार ने तो बोस की हिटलर तक के साथ फोटो छापी 1945 के। कैन यू इमेजिन दैट? कि जो अंग्रेजों का डर था वो वॉर सीक्रेसी एक्ट और डिटेंशन एक्ट और ये वो किसी की परवाह नहीं की। इन अखबारों ने, ट्रिब्यून पंजाब के अंदर, अमृत बाजार पत्रिका, अभ्युदय, बॉम्बे क्रॉनिकल, नेशनल हेरल्ड, ये इस तरीके के। एक और जो ये सिंह साहब ने बताया शादी की शादी, इसमें तो 3 बातें करी गई, और अभी अनीता बोस जो है ये कमेंट करती है कि मेरे पिता ने गलती की साहब, गलत लोगों के साथ जरूरी है, उससे कुछ भी रिसर्च की, मैंने पढ़ा है कि वो क्यों गए थे। सोशल मीडिया में मैंने तो बहुत बुराई की, इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, साहब मैं स्टैच्यू पे दवा होगी जब आप ये विश्वास दिलाएं लिख करके कि वो अस्थियाँ वहाँ से आ जाएंगी जापान से। किसकी अस्थियाँ? जानवर की अस्थियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि इट्स प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट there was no plane crash. Yes, the mystery is still to be resolved. What happened after that? जिस आदमी ने, कर्नल रामचंद्र राव ने, जो नेताजी का पर्सनल फिजिशियन था, जो सैगॉन में उस दिन आखिरी दिन तक उनके साथ था, जो अकाउंट उसने दिया खोसला कमीशन के सामने कि वो प्लेन फ्लाई कर गया, हमको इंस्ट्रक्शंस थी कि आप तुरंत एयरपोर्ट छोड़ देंगे। मैं किसी काम से वहां रुक गया, 10 मिनट बाद वो फ्लाइट वापस लौटती है और दूसरे रनवे पे उतरती है, और नेताजी उस प्लेन से नीचे उतर के आ जाते हैं, और उस प्लेन का जो पायलट है उसको उनके कुछ कपड़े और सामान दे दिया जाता है। और फिर कहता है जब नेताजी मुझे देखते हैं वहां तो मेरे ऊपर बहुत गर्म हो गए कि तुम कैसे कर दोगे। और कहता है उसके बाद 4 दिन हम साथ रहे, उनका बीपी हाई था, सबमरीन का वो इंतजार कर रहे थे,
हिरारी की, हिकारी, कीकन और जर्मन एजेंट्स ने मिलकर वो सबमरीन अरेंज की और वो सबमरीन से छोड़ दी गई। उस शख्स को आप विश्वास करेंगे, पहले तो जिगर काचा से मुल्तान भेज दिया। यहां तो ये कहा गया कि लाल किले के ट्रायल्स खत्म हो गए हैं, अब किसी पे मुकदमा नहीं चलेगा 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को ही 4 जनवरी को स्पेशल ट्रेन चलती है जिगर काचा के बंगाल के कैंप से, जिसमें 1029 लोगों को ब्लैक कैटेगरी दे करके मुल्तान भेज दिया। सन 47 के बाद मुल्तान में किसका क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कर्नल रामचंद्र राव को जब छोड़ा गया मुल्तान की जेल से, और ये 48 के अंदर जनवरी में वाघा बॉर्डर क्रॉस के जब हिंदुस्तान में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया हमारे हिंदुस्तान के पुलिस ने। चार्ज क्या लगाया कि इन्होंने बाइसिकल चोरी की। उसके बाद इनको आंध्रा की जेलों में और कटक की जेलों के अंदर हथकड़ियों और बेड़ियों में रखा गया। इमेजिन that a doctor colonel of Azad Hind Fauj, personal physician of Netaji, was kept like this till 1972. खोसला कमीशन के सामने वो हथकड़ियों और बेड़ियों, जब उससे पूछा गया तुम्हारा एविडेंस कहाँ है इसका, बेटा एविडेंस मेरी डायरी जो मैंने उस समय लिखी थी। बोलो डायरी कहाँ है, कहता हाईएस्ट अथॉरिटी। क्या तुम नाम लोगे इस हाईएस्ट अथॉरिटी का? उसने कहा मेरा हाल आप देख ही रहे हैं। जैसे वकील पूछते हैं सवाल करते हुए, अच्छा ये तो बता दो कि वो डायरी तुमने मूर्ति भवन में दी थी या साउथ ब्लॉक में दी थी? तो फिर कहता है कि नहीं मेरा हाल देखिए, मेरा जवाब नहीं। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे को हाईएस्ट अथॉरिटी के पास कौन लेके गया? तो 2 नाम लेता है, बीजू भट्टराय और संजीवा रेड्डी। उसके बाद कर्नल राव का क्या हुआ, अपने RTI की कटक की जेल के अंदर कि हमको उसका रिकॉर्ड दिया जाए। जवाब आता है कि साइक्लोन में उड़ीसा में वो सारे कागज खत्म, मतलब नेताजी से रिलेटेड कोई फाइल हो, खजाने की हो, किस चीज की हो, वो सारी फाइलें गायब थी। और कहानी एक अकेले हबीबुर रहमान के उसके ऊपर आप कहते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया। और भाई प्लेन क्रैश हो गया था तो नेहरू जी तुम उनके खानदान की जासूसी क्यों करवा रहे थे? 2012 तक ये हालात थी कि अगर कोई ऑथर नेताजी पे किताब भी लिखना चाहता है तो IB उसके यहाँ पहुंच जाती थी। AM शाही की किताब है नेताजी के ऊपर, द स्टीयरिंग टाइम्स। तो उस किताब में जब मैंने पढ़ी वो किताब, भारतीय आशा साहिनी जो आज़ाद हिंद रानी जेंटलमैन थी, उनके बेटे ने मुझे किताब पढ़ते थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा संजय इसमें से बर्मा वाला चैप्टर है। बोला भाई साहब आपने पकड़ लिया। मैं तो हिस्टोरियन हूँ, जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा कि इसमें सबसे मिसिंग और पूरा बर्मा वाला चैप्टर मिसिंग है जो 1 महीने बर्मा रहे हैं और एक साल। बोला भाई साहब वो चैप्टर इंटेलिजेंस वाले ने। आज तक वो फाइल्स जो अराकान के अंदर पहली विक्ट्री होती है आज़ाद हिंद फौज की, कर्नल मिश्रा लाइन्स कहलाने लग गई थी कर्नल मिश्रा के नाम पे। जब तक वो पोस्टेड रहे वहाँ पे लखनऊ के थे, अंग्रेज जीत नहीं पाए उस एरिया। उन लड़ाइयों की फाइल्स आज तक जो है डिक्लासिफाई है। और आप हैरान होंगे कि फ्रांस के डिफेंस आर्काइव्स में एक फाइल है नेताजी को लेकर, जिस फाइल को 100 साल के लिए क्लोज करता है। वो फ्रेंच है जो बड़ी दुनिया में लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और उसकी बात करते हैं कि भैया ऐसी कौन सी चीज़ है उस फाइल के अंदर जो तुम 100 साल तक छुपा के रखना चाहते हो? क्योंकि फ्रेंच इंटेलिजेंस की लगातार रिपोर्ट्स थी, दे नेवर बिलीव्ड इन द प्लेन क्रैश। अमेरिकन इंटेलिजेंस नेवर बिलीव्ड इन द प्लेन, ब्रिटिश इंटेलिजेंस नेवर बिलीव्ड इन द प्लेन।
एल्फ्रेड मैक करके शिकागो ट्रिब्यून का कॉरेस्पॉन्डेंट था, फरवरी 46 में वो घूम रहा है साउथ एशियन कंट्रीज में। वो बता रहा है कि सारी इन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश एजेंट्स फैले हुए हैं। तो चुन चुन के बंगाल से इंस्पेक्टर ले गए थे जो नेताजी पे नजर रखते थे, एंड दे हैव ऑर्डर्स टू शूट हिम एट साइट। ऐसे ऐसे कांग्रेस लीडर्स के बयान मैंने निकाले हैं जो INA के जब ट्रायल्स चल रहे हैं तो अंग्रेजों से कह रहे हैं, अरे भाई तुमने इनका निपटारा वहीं पे शुरू कर दिया था, यहाँ पे हमारे सिर पे बड़ा क्यों ला करके लीडर्स के विशेष। एक और बहुत बड़ी बात जो छुपाई जाती है जब ये कहा जाता है कि वो फाइटिंग फॉर फासिज्म और ये सब, तो ठीक है हिटलर बहुत बड़ा फासिस्ट था, है नो एप्रिसिएशन फॉर हिटलर, लेकिन एक बात और है, हिटलर फासिस्ट था, उसने रूस को मारा है, उसके लिए लेकिन भाई अंग्रेज तो क्या हुआ? जितने तुमने दुनिया के अंदर मारे हैं, चाहे वो अमेरिका के रेड इंडियंस हो और चाहे वो एबॉर्जिनीज हो ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो अफ्रीकन हो और चाहे भारतीय हो, चाहे चीनी हो, उससे ज्यादा करते आप दुनिया में किसी ने किया है? और पुरानी बात भी अगर कहते हैं छोड़ दीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी में कितने मरे थे? एक ही वो किसने चलाया था एटम? हिटलर ने तो नहीं चलाया। किन पे चलाया था? बच्चों और औरतों के और बूढ़ों के ऊपर, क्योंकि जवान तो जापानियों के सारे बाहर थे, सुलझन लड़ रहे थे। लेकिन सारी दुनिया फासिस्ट है, आप सब ये जो पोस्ट के ऊपर दिया गया लगातार उन्होंने क्लियर किया, I have nothing to do with what Japan and what Germany is doing in Germany. क्रिटिकल थे नाज़ीज़ के। और एक बात आप लोग भूल जाते हैं, दबा दी जाती है बात कि बोस जब कलकत्ता से चले हैं, मैं उसको एस्केप नहीं करता, लोग एस्केप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वेंट आउट ऑन अ ग्रेट मिशन, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ है। तो वो जर्मनी नहीं जा रहे थे, ही वॉज गोइंग टू रशिया। पूरी प्लान थी रशिया से हेल्प लेके, आर्मी लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की तरफ से ब्रिटिश को अटैक करना। और एक और हिडन फैक्ट मैं आपको बता दूं, लास्ट में वो था भारत में अंग्रेजों के राज को जापानियों के राज से वो करना चाहते थे। अराकान में मूव करने से पहले 43 जनवरी के अंदर 43 दिसंबर के अंदर जापानीज और आजाद हिंद सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट की पहली शर्त ये थी कि जिन इलाकों को अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा वहां पे कहीं भी जापानी झंडा नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ तिरंगा रहेगा। उन इलाकों का जो प्रशासन है वो जापानी नहीं करेगा, वो आजाद हिंद दल के लोग करेंगे, जो नेशनलिस्ट ब्यूरोक्रेसी नेताजी ने की। और एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उसमें कि अगर कोई भी सोल्जर जापानी या हिंदुस्तानी अगर किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। Why that clause? नेताजी ने देखा था कि जापानियों ने कोरिया और चाइना में क्या किया। जो आदमी अपने बंगाल के लोगों को जापानी डिपार्टमेंट समझते हुए नहीं, अजय सिंह साहब ने कहा नेताजी लेफ्ट हिज फैमिली इन इंडिया टू फाइट फॉर द मदरलैंड। He did not leave India to make a family of his origin. And we have to look at the facts. मैं इसीलिए ओपन चैलेंज करता हूं, चाहे वो डेथ की स्टोरी हो, चाहे जैपनीज फासिज्म हो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैठ करके कोई भी मुझसे बहस करने, एविडेंस देगा, लफाजी में नहीं देगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, यूनिवर्सिटीज पे मैं नहीं जाऊंगा। और एक लास्ट बात और कहूंगा, एक ऐसे देखिए, एक तरफ बात करते हैं हम अखंड भारत,
जो आदमी अखंड भारत के लिए लड़ा, जिसकी फौज अखंड भारत के लिए लड़ी, जिसमें हर कौम के लोग मौजूद थे, उसको तो तुम कह दो इसने जिहादी पैदा किया। और जिस आदमी ने भारत तोड़वा के पाकिस्तान को मंजूरी दे दी, कि पहले कहा कि पाकिस्तान विल बी ओवर माय डेड बॉडी, और फिर वाइसरॉय के आगे लिख दिया हैव आई सेड एनीथिंग अगेंस्ट योर स्कीम, वो इस देश में बात। जिसने सब कुछ त्याग दिया, आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद का झंडा लगाया, उसको तो आप जापानी कुत्ता कह देंगे। और जो कहता है सन 47 के अंदर के आजाद हिंद के झंडे के अंदर यूनियन जैक लगाओ, वो इस देश में। How much time is left? Huh? 5 minutes. Then what do you expect to do? Give me 5 minutes more. Huh? Yeah. देखिए अभी ये जो बात उठ के आई कि वो जापानीज़ का साथ दिए, तो मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी उम्र बहुत कम थी, सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन वो अरबिंदो से बिल्कुल उनका जो ओपिनियन जो था वॉर में सपोर्ट को लेकर वो बिल्कुल अलग था। अरबिंदो का ये कहना था कि भाई अंग्रेज को अगर आप मदद करोगे तो दे विल बी वेरी बिनाइन आफ्टर द वॉर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का उस समय भी मानना था कि इस वॉर के बाद ये पूरे जो पश्चिमी देश हैं ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे और इससे अच्छा मौका हमारा आज़ादी की को क्लेम करने के लिए, आज़ादी की जंग के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। सो ही वॉज इवन वेरी क्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। दूसरी बात ये है कि एक अगर आप मिलिट्री नज़रिए से देखें, पर्सपेक्टिव से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए नादिर शाह, आपको मालूम है नादिर शाह का हमला 1739 में हुआ था, और उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे आपको मोहम्मद शाह रंगीले यहाँ पे था, उसकी मदद में कोई नहीं आया, न निज़ाम आया, न इधर आपके इस इलाके से रोहिलाज आए। भारत जो है बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, सब ने अपनी सेनाएं तैयार की। यहाँ तक हुआ कि जो लोग खेती करते थे उनको भी कहा गया भाई खेती करो लेकिन अपना तलवार भाला ये सब घोड़ा तैयार रखना, जब बोलेंगे तो इधर आ जाना। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट द होल ऑफ इंडिया बिकेम अ मर्सनरीज। यहाँ पर इतने मर्सनरीज थे, ये जो आप बहुत बड़ा चर्च देखते हो ना स्किनर का, ये जेम्स स्किनर वाज आल्सो ए मर्सनरी। एक अपना रेजिमेंट रखता था घोड़ों का, येलो बॉयज़ के नाम से, और आपको अगर ज़रूरत है तो ग्वालियर को ज़रूरत है उसको दे दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में सारे मर्सनरीज यहाँ पे भरे हुए थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसीलिए उनको रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़े दिल से लोग गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोग ऑलमोस्ट 25 लाख की आर्मी, 2.5 मिलियन, इट वॉज ए वॉलंटियर आर्मी। इतनी गरीबी कर दी थी उन्होंने इस देश में कि लोग 2 वक्त की रोटी के, आपको मालूम है ना बंगाल फैमिन वगैरह उस समय हुआ था, 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो चले गए। नाउ व्हाट सुभाष डज इज आफ्टर 200 years from 1739 to almost 1942 उन्होंने इस मर्सनरी आर्मी को एक पैट्रियोटिक आर्मी में बदल दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो छोड़ दीजिए जो उन्होंने आईएनए में जिन लोगों को रिक्रूटमेंट किया, और आप अगर उनके पूरे अगर इफ़ यू रीड देयर यू नो उनके जो जब वो प्रिजनर बने और उनके बाद में जो बयान थे, डिस्पाइट यू नो वेरी भी लो नहीं रहा, वो हमेशा भारत माता के सपूत। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए को वो नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन उनका दिल नेताजी के साथ था। और ऐसे इनकी किताब में एक है कर्नल ढिल्लन का ऐसा एक वाक्य है। तीसरा चीज़ मैं आपको
मैं नहीं जानता किसका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लेकिन मैं 500% मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बड़ी अजीब बात है सर, एक बाबा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आईबी भी लगी हुई है, सीबीआई भी लगा हुआ है, उसके फ्यूनरल में बाद में 86 में डीएम भी आता है, एसपी भी आता है, कुछ उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, वो पर्दे के पीछे से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये अपने आप को इस कहते हैं ये शरीर जो है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहा है, ये शरीर जो है ये समुंदर के अंदर भी गया है। दिस इज हाउ यूज्ड टू से। बाबा के पास बाइनाकुलर है, बाबा के पास कंपस है, बाबा के पास मैप्स है, बाबा के पास जानकी दास बोस और उनकी माता का मतलब वो फोटो है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार का। तो ये अब मैं इसमें जानना नहीं चाहता कि वो क्यों इसको उजागर नहीं किया गया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपको मालूम है ना कि 1960-70 तक तो अमेरिका से जहाज आता था तो हमको खाना मिलता था, फ्रॉम शिप टू माउथ हम लोग थे पिलग्रिम। ऐसे समय में आप अगर ये कह देते कि ये सुभाष चंद्र बोस हमारे पास है तो आपका खाना भी बंद हो जाता। वो कहते हैं वॉर क्रिमिनल है, इसको लौटा दो मुझे, ठीक है। और बाकी जो था, और उस आदमी में हमेशा एक वो क्या एक संत का स्वभाव उनका हमेशा से उनका रहा। तो जब आप पूरी जिंदगी आप उनको एनालाइज करते हो, राइट फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न एंड ही वेंट इनटू ICS एंड देन बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट, टिल ही रेज्ड INA एंड दैट फेज ऑफ गुमनामी बाबा, क्या चरित्र है, व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर। हम धन्य हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस आदमी ने भारत के ऊपर में पहला आजादी का झंडा फहराया अंडमान में और फिर मणिपुर में, तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो अभी जब अयोध्या में इतना सब कुछ हो रहा था, भगवान रामलला पुनः स्थापित हुए, मैं उसको एक और भारत के सपूत के साथ इसको जोड़ के मैं देख रहा था, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई बार लोग कहते हैं कि ये जैसे नौसेना में रिवोल्ट हुआ तो अपने आप ही नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोग जब अराकान से जब आज़ाद हिंद फौज के POWs के लिए ला रहे थे, जिसको इन्होंने वर्णन किया है, वो तलवार थी शिप का नाम, जब वो कांटेक्ट में आए हैं आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स जो POWs को ला रहे हैं, तो उनका कहना था कि आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम शुरू होता है। दैट इज व्हाट दिस मैन डिड। उन्होंने आग लगा दी थी, दिलों में आग लगा दी थी। और तभी मैं कहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो मैं वो सेकंड फेज वाला जो कह रहा हूं ना, ये जितने ये कुधर्मी जिन लोगों ने जो कहा कि हमने बहुत लाठियां खाई और बस कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, उन लोगों ने they were the biggest thieves। वो सबसे बड़े चोर निकले आजादी के बाद। वरना जिस आदमी को अपने वतन से मोहब्बत हो, अपने लोगों से मोहब्बत हो, वो आदमी देश को लूटेगा, वो स्कैम करेगा। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले फेज के लोग अगर आते, वो ऐसा नहीं करते। और वहीं पर लोग कहते हैं पैट्रियट क्या होता है? पैट्रियट वो होता है जिसको अपने देश के बारे में चिंता हो, जिसको नेशन बिल्डिंग के बारे में चिंता हो, जो अगर क्रिटिसिज्म भी अपने देश का करता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो ग्लास को हमेशा आधा फुल देखता है, जो आधा खाली नहीं देखता हो, वो आदमी जिसको भारत की सेक्रेड ज्योग्राफी से जिसको मोहब्बत हो, जिसको यहाँ के संगीत से और संस्कृति से और साड़ी से जिसको मोहब्बत हो, वो आदमी पेट्रियट।
तो पेट्रियट का डेफिनेशन, परिभाषा बहुत मेरे लिए बहुत सीधा है। जिस आदमी के मन में वो सिविलाइजेशनल मूवमेंट जब राम लल्ला को ये किया गया, पुनः उनको स्थापित किया गया, अगर उसके दिल को ना छुआ हो, वो आदमी पेट्रियोटिक नहीं है। He is not a patriot. He may be a good citizen. वो बहुत तेज आदमी होगा, हो सकता है वो क्या हर साल वो यूपीएससी का एग्जाम निकलता है, वो 5 फर्स्ट 10 उसके बारे में, दैट्स ओनली वंस इन अ लाइफ ना, उसके ये वो सब अलग चीज है। यू मे बी वेरी कॉम्पिटेंट, यू मे बी अ वेरी गुड साइंटिस्ट, बट यू आर नॉट ए पेट्रियट। इट इज एज सिंपल। एंड वो देश, राष्ट्र निर्माण ये पेट्रियट से चलता है, ये अचीवर से नहीं चलता है। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सिंह साहब। क्योंकि यंगस्टर्स बैठे हैं, एक छोटा उदाहरण देके मैं इनको खत्म करना चाहूँगा। कृपया ध्यान दें, रिशु और नैना स्कूल ड्रेस में 8th क्लास की बच्चियां हैं। ये संत निरंकारी पब्लिक स्कूल की हॉल नंबर 5 से अपने टीचर से बिछड़ गई है। किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो वह हॉल नंबर 3 के रिसेप्शन तक उनको छोड़ दे। रिशु और नैना, यदि आप तक ये आवाज जा रही है, आप अपने पास खड़े किसी भी वॉलंटियर से बोल दें कि हॉल नंबर 3 के रिसेप्शन पर छोड़ दें। किस तरीके से सिंगापुर और रंगून में 16, 17 साल की बच्चियों ने रानी झांसी कृपया ध्यान दें, रिशु और नैना क्लास 8 की बच्चियां हैं, ब्लू स्कूल ड्रेस में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल की, अपने टीचर से बिछड़ गई हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि ये दोनों बच्चियां मिलती है तो हॉल नंबर 3 के रिसेप्शन हॉल पर छोड़ देंगे। 17 साल की बच्ची है, नेताजी का भाषण सुनती है सिंगापुर में, घर वालों से कहती है मैं रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करने जा रही हूँ। घर वाले कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसको ऊपर के कमरे में बंद कर देते हैं। रात को 12:30 बजे वो अपनी चुन्नी नीचे डाल के खिड़की से, छत से कूदती है, उस खिड़की से भाग के आती है, चोट लगती है और 1 बजे रात को रानी झांसी रेजिमेंट के दरवाजे पे आके खड़े हो जाती है ट्रेनिंग कैंप पे, दरवाजा खोलो मैं ज्वाइन करूंगी। एक और बच्ची, उसके घर वाले उसे लेने आ जाते हैं। बहन कहती है तूने जो ज्वेलरी पहन रखी है ये हमारी है, उतार के दे दो। फिर बहन कहती है तूने ये जो कपड़े पहन रखे ये भी हमारे। भाग के अंदर जाती है, एक रानी से कपड़े बदल के कपड़े ला के दे देती है। बहन कहती है तू हमारे लिए मर गई, आज मैं इन कपड़ों को जला के तेरा श्राद्ध करूंगा। वो जवाब देती है हाँ मैं तुम्हारे लिए मर गई हूं और आज मैं अपने लिए पैदा भी हुई हूं, भारत मां को आजाद। ये एक जज्बा था जो मुश्किल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, कृपया ध्यान दें, कि रिशु और नैना 8th क्लास की 2 बच्चियां किताबों से बाहर स्कूल निकले। ड्रेस में अपने टीचर से बिछड़ गई हैं। विपिन चंद्रा किसी भी साहब वॉलंटियर या अन्य व्यक्ति को मिलती हैं और जो लेटेस्ट अब रिसर्च आ रही है तो इन्हें हॉल नंबर 3 के रिसेप्शन थोड़ा उस पर ध्यान काउंटर तक छोड़ दें। समय की कमी है, नहीं तो ये टॉपिक ऐसा है। रिशु और नैना, अगर चाहें तो सिंह साहब के भी यूट्यूब पे, मेरे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं नेताजी के ऊपर। और अगर वो ये किताब अगर किसी को चाहिए हो तो आई थिंक यार ऑफरिंग 50% डिस्काउंट पे शायद बोला था मैंने, कोई चाहिए हो तो इस किताब है। ये इंडिका से है, एक दूसरी लांसर से है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन हैव। Yeah, so now we will start the question round. If you have any questions, you can raise up your hand and our esteemed panelists will answer them. Yeah, can you please pass on the mic, team? No, I just wanted to add. नेहरू जी Please pass on the mic if possible. नेहरू जी जिस जेल में थे आपने जो बताया ना,
उनको तो ब्रेकफास्ट दिया जाता था उनकी मर्जी का, और उनको न्यूज़पेपर दिया जाता था। 5 स्टार उनके लिए बहुत अच्छा उनके लिए अरेंजमेंट था। कॉपी जो है वो उनकी मर्जी से अपॉइंट किया जाता था। यस सर। गांधी को रखा जाता था आगा खां पैलेस में। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अंडमान जेल्स को तोड़ने के ऑर्डर नेहरू जी ने दे दिए थे ताकि रेवोल्यूशनरीज को पूरा निशान मिट जाए। इट वॉज लाल बहादुर शास्त्री द होम मिनिस्टर हु सेव्ड इट। लेकिन दोबारा 77 में आने के बाद में एक अनदर गार्जियन मुरारजी देसाई, उसने 4 विंग तोड़वा दिए थे अंडमान जेल्स। आज सिर्फ 3 विंग बचा। Any other questions? Yeah, sure. सर पिछले 3 सालों में नेताजी के ऊपर सर मैं सनीनामा पत्रिका से हूँ और आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ सर। कहने कौन सा सर आप बता रहे थे So, ma'am, can we just start it like one by one? सर आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि जो नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी है उस पर कोई ना कोई एक ह्यूज कुछ वर्क होता ही है, जैसे कि इंडिया गेट के ऊपर उनकी स्टैचू का पर इस बार जैसे कि अभी आपने कहा कि इस बार जैसे कि रामलला के ऊपर भी जगह मंदिर का उद्घाटन हुआ है और करीब नेक्स्ट डे उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और उसके बारे में लगता है कि शायद न्यूज़ कवरेज, और इसके बारे में ना तो न्यूज़ अब चैनल आपका न्यूज चैनल ना चलाएं तो न्यूज चैनल्स की मैं ठेके नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि न्यूज चैनल इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कोई दंगा भी हो जाएगा, जरा सा भी उन्हें मसाला मिलेगा तो उसको रिपोर्ट करेंगे, तो वो तो छोड़िए न्यूज चैनल्स की बात। लेकिन 23 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था रेड फोर्ट के अंदर, ये खुद आए थे उस फंक्शन के अंदर। मैं उस दिन विराटनगर नेपाल में था, वहाँ नेताजी का बर्थडे मनाया गया था। कटक के अंदर उनका वहाँ मनाया गया था, और कई छोटे छोटे जगहों पे लोगों ने, बहुत लोगों ने मनाया है इसको लेकर। लेकिन सवाल देखिए रही है, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि आप किसी का बर्थडे मनाइए या वो करिए या ये यादों में नहीं, जब तक उनके आदर्शों पे आप अमल नहीं कर सकते तब तक वो सब दिखावा मात्र है। और हमारे पॉलिटिशियंस भी और लोग भी इसमें बहुत माहिर हैं। नेताजी के नाम पे भी बहुत से लोगों ने दुकानें खोल ली हैं कि नेताजी के नाम पे फंड ले आओ कल्चर मिनिस्ट्री से और ये कर लो और हम फिल्म बनाएंगे और वो करेंगे। सवाल उठता है, हमारा काम एज ए हिस्टोरियन इतना है सिर्फ कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो हम आपके सामने रखते हैं, समझ आपकी है उसके ऊपर, फिर कैसे अमल करना उसको लेकर। क्योंकि मैंने जो रीजन्स में मैंने 44 साल तक पढ़ाया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, मैंने कभी ये नहीं सोचा था हिस्ट्री पढ़ाते हुए कि जो कारण मैं भारत के गुलाम होने के एनालाइज करके अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, उन कारणों को मैं दोबारा अपनी आंखों के सामने इस देश में सामने आते हुए देखूंगा। Due to time constraint, we'll be taking the last question now. मैं सदीनामा पत्रिका से मीनाक्षी सांगानेरिया आपसे बात कर रही हूँ सर। आप जो बता रहे थे कि गुमनामी बाबा, तो क्या सर उनके कुछ दस्तावेज हैं हमारे पास जो हम मतलब लोगों तक पहुँचा सकें और जिससे कि लोगों को ये जानकारी, सही जानकारी हम लोगों तक दे सकें? I would urge that you read अनुज धर की किताब है इसके बारे में, बहुत उन्होंने इन डेप्थ रिसर्च किया है इस पे, और उनका उस किताब का नाम कनंड्रम मिल जाएगी, अनुज धर की किताब है वो, और 2600 आर्टिकल्स उनके नक्शे में वो सीन है रिलेटिंग टू नेताजी। अनुज धर का ये भी कहना है कि किसी आदमी का हैंड राइटिंग एक भाषा में मिल सकता है लेकिन 2 भाषा में नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और मेरा अपना ऐसा मानना है, अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था वो IAS विद हरि मोहन के साथ, तो मैंने जब उसमें उस टॉक के बाद कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो एक साहब है वहाँ पे, कोई डॉक्टर है कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसमें ये जिक्र किया है अपने टॉक में कि अगर आप ताशकंद का फ़ोटो देखें तो एक फ़ोटोग्राफ है जो लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उन्होंने जो वर्ल्ड का जो सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया कलकत्ता में, वर्ल्ड का जो बेस्ट जो वो फेस मैपिंग करते हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है।
He came here somewhere around 67, 68, handed over by Russia to us, ठीक है ना? And for geopolitical reasons, वो मेरा अपना मानना है कि वो एक गुमनामी बाबा का वो जिंदगी उन्होंने जिया। देखिए बहुत 4 छोटे से सवाल है इसके अंदर, जिन्हें गवर्नमेंट को आंसर देना होगा। एक गुमनामी बाबा है, ठीक है, उसका आपने डीएनए टेस्ट कराया, पहले कहते हैं रिपोर्ट खो गई, फिर कहते हैं मिलता नहीं, और जब कहा गया कि वो जो डीएनए का क्या बोलते हैं उसको आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम वो रिलीज करिए, तो कहते हैं अगर वो हमने रिलीज कर दिया तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। अरे एक गुमनामी बाबा जिसका ये तक नहीं मालूम के नाम क्या है, उसका आप डीएनए रिलीज नहीं कर सकते कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि तो क्या छुपा रहे हैं? हैंड राइटिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग। तीसरी चीज, साहे साहब को ये कहा गया था कि वो आइडेंटिफाई करें ये आदमी कौन है, ये नहीं था कि ये बोस है या नहीं। आप लिखते हैं रिपोर्ट में, इज नॉट सुभाष चंद्र बोस, ही मे बी सम अदर सीनियर लीडर ऑफ आईएनए। आईएनए के तो जितने ऑफिसर हैं सारे मालूम है, कोई मिसिंग नहीं है। फिर अपना ये पवित्र मोहन रॉय जो नेताजी के डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे, वो जिंदगी गुमनामी बाबा के यहाँ जाके रहे कि बंगाली में उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पब्लिश हुए हैं उसके बाद से। तो इस हिस्ट्री को मेरा एक अपना फीलिंग अभी आ गया है क्लियर मुझे, क्योंकि वो गवर्नमेंट, देखिए मोदी जी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि देयर वाज नो पेन, तो इतना नहीं करता, और इस चीज़ को नेहरू भी जानता था बड़ी अच्छी। अब क्यों नहीं सामने आ रही? जब आईबी फाइल्स की हम लोग डिमांड करते हैं तो कर्नल साहब ये बता सकते हैं कि एक तो देखिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे इवन एक्ट अबव पीएम। मोरार जी ने रॉ के ऑपरेशंस बंद कराने के ऑर्डर्स दे दिए थे, लेकिन ऑपरेशन बंद नहीं हुए। तो आईबी एक तो अपना ये नहीं चाहती कि हमारी वो बाहर आए बोनस ऑपरेशन। दूसरा ये है कि आईबी के एक डायरेक्टर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने झूठ बोला था, आगे एफिडेविट दिया था मुखर्जी कमीशन के सामने कि आईबी का इस इशू में कुछ लेना देना नहीं। और जब पीएमओ की फाइल्स डिक्लासिफाई हुई तो उनमें मलिक साहब की लिखी हुई चिट्ठियां मिल गई साहब, तो अपना फंक्शनिंग आउट नहीं। एक तीसरा भी और है कि हो सकता है कि इन आईबी लोगों ने कुछ ऐसी चीज लिख दी हो जिसको गवर्नमेंट समझती हो कि नेताजी के लिए डेरोगेटरी हो, जैसे अंग्रेज रानी झांसी के लिए रेजिमेंट के लिए लिख गए थे कि ये तो इन्होंने अफसरों के एंटरटेनमेंट के लिए फौज बनाई थी। और मेरी Thank you so much for being a part today, and I would love to hear more about it, but as you said, I would follow the channel and know more about it. Due to time constraint, we had to cut you off, but we would love to hear you as much as possible. So to express our gratitude for the lovely, insightful session that was given by Kapil sir and Colonel, thank you so much for being here, and I would like to call upon the Festival Director of Pragati Vichar Literature Festival, Mr. Kapil Gupta, to felicitate our special guest. Please put your hands together for the conclusion.